Hello, everybody. Greetings of the day. So today we have with us a multitasker, a personality, or it wouldn't be wrong to say a legendary pharmacy professional with us, Dr. Chanchaldeep Kaur. So ma'am has completed her D pharmacy. Is a gold medalist in B pharmacy. She is All India rank 53 in GATE. Ma'am has also completed her PhD and MBA. Ma'am has won several awards, including IDMA GP Nair Award. Ma'am has also won the Pragatishil Ratna Award. Ma'am has been also felicitated by Maharaji for growing active researcher. Ma'am has also been awarded with the Diligence Award 2014-2015. Along with that, she is also titled as a Susakshit Sikh Mahila Award 2015. Ma'am has also won Chhattisgarh Gaurav Samman 2019. Ma'am has been Best Performer Award 2018-2019. And along with that, she's one of the Best Academician Award 2020. This is not just it. Ma'am has more than 100 publications, including short communications, review articles, book chapters, research articles, and many more. Ma'am is also a life member of the Chhattisgarh State Pharmacy Council. She is a life member of Association of Pharmaceutical Teachers of India, which is APTI. Ma'am is also a life member at IPM and a life member at SPDS. Ma'am has more than 19 years of teaching and research experience. She has several grants, fellowships, and scholarships awarded for her projects. These were just a few of her achievements. And let us welcome Dr. Chanchaldeep Kaur for this session for her outstanding performance and contribution to the field of pharmacy. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much. So today in this session, from the thumbnail you would have seen, we are going to discuss pharmacy as a miracle profession. And we will be discussing certain questions of aspirants and budding pharmacists that commonly come into their minds. So the first question is, ma'am, what is the scope of pharmacy? Why एक बच्चा pharmacy क्यों लेगा 12th के बाद? Okay. So इसकी बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी एंड पीएचडी होता है. तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमको फार्मेसी करना है तो आप मैथ्स और बायो वाले दोनों ही कर सकते हैं. ये एक चीज है जो कई लोगों को पता ही नहीं है. अगर हम ये सोचते हैं कि 12th में अगर सिर्फ बायो लिए हैं तो ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन come in this branch of pharmacy. So for diploma in pharmacy, there are various opportunities, and for bachelor there are various others. तो डिप्लोमा 2 years का कोर्स है जैसे आप जानते हैं, और बी फार्मेसी 4 year का कोर्स है या 8 semester you can say, and M Pharm is of 2 years. Now, who all can do diploma and what are the opportunities for diploma? First of all, I will discuss that. I think one by one we will discuss. सो डिप्लोमा जनरली जो लोग करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें एज बार नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट, सिंस देयर इज नो एज बार, so many students and as well as the people who are already running pharmacy stores, they also come and do diploma in pharmacy. So after D Pharm, what are the opportunities? So you can open a medical store, you can be a hospital pharmacist, then you can be a pharmacist in various health, like small primary health centers are there. There also you can go. Then these are some of the opportunities for D Pharm. But if you are doing Bachelor of Pharmacy, that is a graduation in pharmacy, then the opportunities are more. So in that, you can go in the industry, and in industry, there are various sections like production, quality assurance, then R&D. There are various areas in which you can go in the industry. Then comes academics. If you are a bachelor of pharmacy, then you can go in teaching also, like D Pharm colleges you can go for teaching. But the thing is, if you if you have experience, after 3 years only you will be eligible for teaching. So before that, 3 years तक आपको कहीं पर भी either as lab technician या pharmacist या marketing में आपको काम करना होगा. Any professional experience is required. Fine. So what I suggest is, सिर्फ बी फार्म करके आप ना रुके.
आप उसके आगे मास्टर्स भी करें, अपनी फील्ड में एम फार्म करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एम फार्म करें कि एमबीए करें, तो एमबीए तो आप एम फार्म के बाद भी कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट, अगर आपने बी फार्म किया है उसके बाद आप जीपैट जरूर दें। और जीपैट इसलिए भी दें बिकॉज इट इज ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, और इससे ये प्रूव होता है कि आपने बी फार्म में कितनी अच्छी पढ़ाई की है। भले आपको एम फार्म नहीं करना है, बट मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, आप जी पैट दीजिए और उसमें एक ऑल ओवर इंडिया का एक अच्छा सा रैंक लाके दिखाइए। लाइक अभी आपने देखा आपके जो होस्ट हैं इनका 43rd रैंक है, विच इज वेरी अप्रिशिएबल, और ये इनके एफर्ट से, इनकी मेहनत से मिला है। तो जब हम अपने आप को ये प्रूव करते हैं कि हमने AIR रैंक मतलब कुछ मिला है, मतलब हम ऑल ओवर इंडिया के इतने बच्चों में हम आउटस्टैंडिंग विद इन 50 स्टूडेंट्स वी आर, तो ये हमको एक तो प्राउड फीलिंग देता है हमको। और साथ ही साथ हमारे जो कलीग्स हैं, बाकी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे प्रैक्टिकल के नंबर से आप स्कोर करके इतना अच्छा ले आते हो, तो उस मिथ को भी हम लोग वो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे टाइम पे ये बोलते थे अरे गर्ल्स को तो प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाते हैं इसलिए इनका स्कोर अच्छा आ जाता है, ये अक्सर बॉयज बोलते हैं। पर मेरा ये था कि हम लोग क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे वहां पर ऐसा होता था कि सब थ्योरी के मार्क्स अलग टोटल करते थे, प्रैक्टिकल के अलग, और जो थ्योरी टॉपर है उसको हम टॉपर मानते थे। तो मेरा थ्योरी में भी आई यूज्ड टू बी टॉपर। सो व्हाट आई सजेस्ट इज गो फॉर जीपैट, देन आफ्टर दैट गो फॉर एम फार्म। एम फार्म आप बहुत सारी ब्रांचेस में होता है, वो आप पीसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिख जाएगा। सो यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी ब्रांच में हम एम फार्म करें, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं। तो आप इसमें ये देखिए कि आपको बी फार्म के टाइम पे कौन सी ब्रांच बहुत अच्छी लगती थी, या कौन सा सब्जेक्ट यू यूज टू लाइक, या जिसको आप खुशी खुशी पढ़ते थे। एंड सेकेंडली, you want to have career in which branch, like for example myself, मैंने बी फार्म के ड्यूरेशन में 2 समर ट्रेनिंग्स की थी इंडस्ट्री में। तो उस ड्यूरेशन में जब मैंने समर ट्रेनिंग किया इंडस्ट्री में 2-3 मंथ्स का, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट मेड फॉर बीइंग अ इंडस्ट्री प्रोफेशनल। वाई? बिकॉज वहाँ बहुत पेशेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती थी। और जैसे हम लोगों को अलग अलग सेक्शंस में काम करवाते थे, R&D में भी, क्वालिटी एश्योरेंस में भी। R&D में मैं देखती थी सेम फिक्स प्रोसीजर होता था, 1 ml ये डालो, 2 ml ये डालो, और मोर ओवर कहीं कहीं पे तो बैठने की सीट भी नहीं होती थी, मतलब पूरा दिन आपको खड़े होके काम करना है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड सेकेंडली, बीइंग फीमेल हमको फैमिली भी देखनी होती है, तो मुझे ये लगा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं, और शायद वो मैं अपनी फैमिली के साथ में उतना उसको जज नहीं, मतलब उतना उसको मैं क्या बोलना चाहिए कि वो जस्टिस नहीं कर कॉम्प्रोमाइज हो पाऊंगी। रहा या सो आई व्हाट हैपेंड वाज, आई थॉट आई विल नॉट गो फॉर टू इंडस्ट्री। तो यहाँ मैं, जैसे हम कैरियर स्कोप्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को एनालाइज करिए, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप एकेडमिक्स में जाइए, रिसर्च अच्छी लगती है तो रिसर्च में जाइए, साइंटिस्ट बनिए। अगर आपको लगता है नहीं हम ये सब नहीं कर सकते, हमको घूमना पसंद है, देन गो फॉर मार्केटिंग जॉब। एंड इफ यू थिंक कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है, बाहर जाना है, देन यू गो फॉर GRE टॉफिल, बाहर जाकर के अपनी MS कर सकते हो। पर मेरा सजेशन यही है, हमारी यंग जनरेशन को, इतना आपने पढ़ाई की है तो आपका जो मैन पावर, आपका कैलिबर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर योर कंट्री। ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, आपको जैसा ठीक लगे। व्हाट आई थिंक इज कि आप यहाँ पढ़िए, इनफैक्ट बाहर भी पढ़ के आइए और फिर अपनी कंट्री को सर्व करिए। दिस इज अ मिथ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया ऑल्सो, पीपल आर अर्निंग वेरी गुड। सो you can go and have your career in academics also, in research also, in industry also, then हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब आपको अट्रैक्ट करता है तो वहां पर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, FDA में बहुत सारे जॉब्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स आप बन सकते हैं, और हायर लेवल में जाएंगे तो आप देखेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ओवरऑल द थिंग इज कि आपको अपनी नॉलेज, स्किल दोनों को शार्प करना होगा। हो सकता है कि आपने बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म के टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं की हो,
नो प्रॉब्लम। एज के साथ हम सीखते हैं, समझते हैं। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। ओके। सो शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे एक ही चीज कहना है हमारी यंग जनरेशन को। जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है दैट इज फाइन, बट आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे करंट सिनारियो है, करंट सिनेरियो में पिछले 2 इयर्स में कोरोना वाले ड्यूरेशन में हम ऑनलाइन मोड में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए। बहुत सारे आप देखेंगे कि यूट्यूब में आपको वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारा लिटरेचर कंटेंट अवेलेबल है, बट जो क्लासरूम टीचिंग है उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। दैट कैन बी एडिशनल knowledge giving platform, but that cannot replace you are going to your college. अभी कुछ बच्चे ऐसा हो गया है कि दे डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। अरे हमको तो सब मिल जाता है, क्या करना कॉलेज जाके। बट द थिंग इज, जो आप क्लासरूम में जाते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, जो आपके टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं, कई बार आपको डांटेंगे भी, तो वो जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में एक अलग ये बोलना चाहिए कि नॉलेज इम्प्रेशन देके जाते हैं। या और वो जो होती है इम्प्रेशंस, वो हमको आगे याद रहती है। ओके। सो व्हाट आई से इज, पढ़ाई अच्छे से करिए, और आपको किस एरिया में जाना है वो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एसेस करके उस एरिया में जाइए। मतलब ऐसा नहीं करो कि मेरा ये फ्रेंड है वो मार्केटिंग कर रहा है तो मैं भी मार्केटिंग करूंगा, या वो गर्ल्स बोलती है ना मेरी दोस्त हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनी है मैं भी वही बनूंगी, फिर साल 2 साल बाद अरे मैडम मजा नहीं आ रहा है मैं वापस एम फार्म करना चाहती हूँ। तो डोंट डू दिस। आराम से बैठिए, प्लान करिए, बहुत कुछ अवेलेबल है कैरियर अपॉर्चुनिटीज के नाम पर। आप हमारा जो चैनल है साई एडू फार्मा, उसमें भी देखेंगे मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्पेशली कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ऐसी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताए हुए हैं, आप उसको अच्छे से स्टडी करो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलती हूँ, हम एक कार खरीदनी होती है तो हम कितना उसके रिव्यूज देखते हैं, कितना कुछ करते हैं। अब मैं जैसे हम कोई मेरा बेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कार में बड़ा उसको इंटरेस्ट है, तो वो सारा दिन ये लोग रिव्यूज देखते रहते हैं, और फिर एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदना होता है तो सारे इफ्स एंड बट्स देख के फिर ये लोग खरीदते हैं। बट हमको अपना कैरियर डिसाइड करना होता है तो व्हाट वी डू इज, वो मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ, या मम्मी ने बोला ये कर लो, पापा ने बोला मैं इंजीनियर नहीं बना तुम भी इंजीनियर बन जाओ, या इस तरीके से हम कैरियर ले लेते हैं। 90% बच्चे तो फार्मेसी में क्यों आते हैं, पीएमटी दिए थे नहीं हुआ तो फार्मेसी में आ गए। ऐसा मत करिए। फार्मेसी में आप आए हैं तो पहले आप ये देखो कि क्या बेनिफिट्स हैं या क्या होता है फार्मेसी। मैं अपना बताती हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। पीएमटी दिया हमने, नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने दिया नहीं घर वालों ने, नहीं नहीं जो मिला कर लो, तो मुझे डी फार्म मैंने भोपाल से किया। हमारे टाइम पे क्या हुआ कि लैटरल एंट्री नहीं होती थी, अचानक उस साल बंद हो गई, तो फिर से नए सिरे से मैंने बी फार्म का एंट्रेंस दिया, सागर यूनिवर्सिटी में हुआ। वहां हमने फिर पढ़ाई फिर से शुरू की, मतलब 2 साल डिप्लोमा के बाद 1 साल मैंने ट्रेनिंग भी की, देन मतलब वो 3 इयर्स मेरे गए, फिर मैंने फर्स्ट ईयर से वापस बी फार्म किया। कई लोग बोलते तुमने समय वेस्ट किया, पर मैं कहती हूँ मेरी फाउंडेशन अच्छी बनी। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज टॉपर फ्रॉम द डे वन। फर्स्ट ईयर से मैं बी फार्म में टॉपर थी। तो कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा की पढ़ाई थी वो मुझे काम आई। ओके। सो आई थिंक जो मेरे को ये कहना है आप लोगों को कि डोंट जस्ट टेक फार्मेसी एज कैरियर, बट यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। मतलब आपको अच्छा लगेगा जब आप इसमें इन्वॉल्व होगे और आप खुशी खुशी फार्मेसी को करोगे। तो जब हम, जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब हम कॉलेज जाते थे, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था, हम बड़ा एंजॉय करते थे। उस टाइम ना हमारे पास गाड़ी होती थी ना मोबाइल होता था, हम पैदल पैदल जाते थे। और काफी, सागर यूनिवर्सिटी का अगर आप हॉस्टल देखेंगे तो काफी सारी स्टेयर्स हैं, फिर पूरा वॉकिंग जाना होता है। एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। बड़ा मस्ती गाने गाते हुए जाते थे। हमारी एक मैम थी वो हमको कई बार लिफ्ट भी देती थी, तो हम लोग बच के निकल जाते थे कि नहीं हम लोग को पैदल ही जाना है मस्ती करते हुए। बीच में कैंटीन में
इतनी हमारी पहचान थी कि जाके उनको बोल के आते थे आज बारिश हो रही है, आज मैगी खिलाना। तो वो जो कैंटीन वाले, उनका नाम बांगड़ दादा था, वो हमको खिलाते भी थे। और हमारा बैच तो इतना बढ़िया था कि एम फार्म में यू वोंट बिलीव कि मेरा लाइपोसोम्स का वो था। हाँ। तो हमारे पास वो राउंड बॉटम फ्लास्क में हम ऐसे-ऐसे फ़िल्म बनाते थे हिला-हिला के, वो राउंड बॉटम फ्लास्क हम कैंटीन तक लेके जाते थे। तो अरे, हमारा जो 8-10 बच्चों का ग्रुप था, एक लाइपोसोम बना रहा था, एक ट्रांसफोरासोम, एक माइक्रोस्फीयर। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ कि हम एक साथ काम करते थे, कुछ नहीं छुपाते थे। तो आज अगर मुझसे आप पूछो तो जितने नोवल सिस्टम्स हम लोगों ने मिलके बनाया, मुझे सबका पूरा पता है। कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैं अभी ये बोलना चाहूँगी अभी हमारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग मिल के काम करो। जबकि क्या होता है, आज छुपा रहे हैं, आज हमने ये क्या किया, हम इसको नहीं बताएँगे, उसको नहीं हाँ बताएँगे। हाँ हाँ। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये कल्चर ही गलत है। हमारे वहाँ क्या कल्चर था, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ हम लोगों ने, अभी जो आपका जीपैट है, हमारे टाइम पे गेट था। तो हम हाँ। लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग सिर्फ आपस में पढ़ते थे, एक-दूसरे की लाइट देखते थे, उसकी लाइट रात को 12 बजे तक जल रही है, इसकी 1 बजे तक जल रही है, तो मतलब वो इतनी देर से पढ़ रहा है। और हमारे में ना बॉयज़ और गर्ल्स में कॉम्पिटिशन होता था हम्म। कि कौन टॉप करेगा। तो बहुत अच्छा था, हमारे सीनियर्स बहुत हेल्प करते थे। मतलब जैसे अभी आप लोग कोचिंग जाते हैं, वहाँ आपके टेस्ट होते हैं, तब हमारे सीनियर्स हमारा टेस्ट लिया करते थे एवरी संडे। तो हम अपने आप पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे तो खाना खाए, उसके बाद हम वॉक करते थे। और यू वोंट बिलीव कि उस ड्यूरेशन में हम पता है क्या करते थे? जैसे आज सपोज़ हमने वो क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक चैप्टर पढ़ लिया, एंथेल्मेंटिक पढ़ लिया, तो उसमें से हम एक-दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। और हाँ। हम खोज-खोज के ऐसे क्वेश्चन्स पूछते थे जो सामने वाला ना सामने बता वाले पाए। को ना आए। जैसे अब तुमको ये नहीं आता, मुझे तो आता है। फिर जाके पढ़ते थे। करेक्ट। और हमने एक और कल्चर क्या डेवलप किया था कि लाइक ये एक चैप्टर हो गया, देन नेक्स्ट चैप्टर में जाएँगे। तो जैसे 4-5 चैप्टर्स हो गए। मेन टेंशन में केमिस्ट्री में ही होती थी क्योंकि वो भूल जाता था। तो हम्म। हम लोग फिर वापस से रिकॉल करते थे। अचानक जैसे मान लो 5th चैप्टर तक पहुँच गए, तो फिर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पूछते थे। तो उससे ये होता था कि हमारा रिवाइज़ होता जाता था। रिविजन। रिविज़न, सो रिविज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो और बताओ और क्या पूछना है? अब मैं या तो आप मुझसे बात करोगे तो मेरे पास इतनी स्टोरीज़ हैं, नेवर एंडिंग स्टोरीज़। तो लर्नर्स फर्स्ट क्वेश्चन में मैम ने इतने आपको अच्छे एडवाइसेस दे। आई विल ऐड हर कमेंट, आई विल ऐड हर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। प्लीज गो एंड चेक आउट द वीडियो ऑन करियर गाइडेंस जो मैम के यूट्यूब चैनल पे है। ऑल्सो मैम ने कुछ 4 की पॉइंट्स बताए जो मैं चाहता हूँ आप लोग हमेशा याद रखो। द वन शीट और आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा उन्होंने कितने अच्छे से आपको बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, पीएचडी हर एक उसका अलग अलग स्कोप बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। थर्डली शी डिस्टिंग्विश के इंडिया कंट्री में पढ़ना है या फॉरेन अब्रॉड में तो कैसे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आज खुद पर्सनली भी सीखूंगा, अपग्रेड करना रहता है, अपग्रेड करते रहना अपने आप को, कभी लर्निंग मत। सो ये 4 की पॉइंट्स थे मैम के पूरे कॉन्वर्जेशन। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कैन अ स्टूडेंट ब्रिंग अ ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ फार्मेसी प्रोफेशनल। मतलब जब स्टूडेंट 4 साल बी फार्म के या 2 साल डी फार्म का कर रहा है, तो ओवरऑल उसका पर्सनालिटी एंड ओवरऑल उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज एक्सेट्रा। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो अपने एकेडमिक्स में जो हम पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा जो आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पार्टिसिपेट इन दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है, आप विनर बनने का मत सोचें, जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे थोड़ा मैं लेज़ी थी, जब हेल्दी थी तो दौड़ने में आलस लगता था, पर हमारे टीचर्स पीछे पड़ जाते थे, नहीं तुमको स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं, तो वो हम क्या करते थे, जाके हम गप्पे मारने लग जाते थे ग्राउंड में जाके भी, क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी टॉकेटिव। तो 2-4 अपने साथ के लोगों को लेके बैठ जाए गप्पे मारने, तो वो चीज़ें भी हम करते हैं कॉलेज लाइफ में। तो बट मेरा ये कहना है वो उसमें भी आप कुछ सीखोगे। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने क्लासरूम में बैठे रहें, आप जाइए जहाँ आपके टीचर लेके जाते हैं। अगर आपको कहीं
ग्राउंड पे लेके जाते हैं, अगर आप कोई कोई इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, अगर आपको कोई फील्ड वर्क पे लेके जाते हैं, जाओ। जैसे हम लोग हमारे बच्चों को, हमने विलेज एक अडॉप्ट किया हुआ है, वहां लेके जाते हैं, सर्वे करवाते हैं, हेल्थ कैंप लगवाते हैं, गो फॉर इट। जब आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स को स्टेज फियर होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रैंडम लोगों को बोलते हैं अब तुम कंपेयरिंग करो, होस्टिंग करो। ऐसे नहीं कि अभी ये कर रहा है तो यही करेगा, अगली बार किसी और को बोल देते हैं। तो आप उसमें डरो नहीं। जब आपके इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप होस्टिंग करो, तो आप सीख जाओगे। फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल प्रोग्राम्स में भी कर सकते हो। स्टेज फियर को दूर करना बहुत जरूरी है, एक ये पॉइंट है। थर्ड, मैं ये बोलूंगी कि आपकी नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको बहुत कुछ आता है बट आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो अभी समय है वो अपने आप को प्रेजेंट करने का है। सो यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। एंड यहाँ मैं ये बोलूंगी कि प्रेजेंटेशन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है हाउ यू लुक लाइक योर अपीयरेंस। यहाँ मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आप जो आपका फिजिक है, यू शुड बी नीट। मतलब आप जो पहने हो वेल प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, जिससे सामने वाला जब आपसे मिले तो पॉजिटिविटी उनको लगे आपसे मिलके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमको कॉलेज लाइफ में ही सीखना है। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये जो 4 ईयर 2 ईयर्स का कोर्स है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के रहिए, एक फैमिली की तरह रहिए। इसमें आपको एक अटैचमेंट भी होगा, एक दूसरे से हेल्प होगी। एंड मुझे एक चीज और लगती है कि वी शुड लर्न टू लेट गो। मतलब कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार हमारे झगड़े होते हैं, उसको लेके मत जाओ। ठीक है, ज्यादा तुमको लगता है तो हफ्ता 10 दिन नाराज हो जाओ, उसके बाद पैचअप कर लेना चाहिए। और तो भी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट कोर्स खत्म होने के पहले पैचअप कर लेना। क्योंकि जब और आप आगे जाओगे, जॉब में जाओगे, तो आपको लगेगा हम बहुत बेवकूफ थे, छोटी राइट। छोटी बातों पे झगड़ा करते थे, और बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इनफैक्ट आप अपने उन्हीं फ्रेंड्स को मिस करोगे जिनके एग्जैक्ट। साथ आप झगड़ा करते थे। तो ये भी एक मेरा है। लास्ट में जो जैसे इन्होंने बोला कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो ये जो भी मैंने बताया ये मैंने कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल बताया। इसके अलावा जो मैं ऐसा समझती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किल डेवलपमेंट हाउ यू विल बी डूइंग, सो फॉर दैट आई सजेस्ट, जब आपको समर ब्रेक्स मिलते हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स होते होंगे, कहीं कहीं 1 मंथ का होता है, कहीं 15 डेज का होता है, गो फॉर सम ट्रेनिंग इन दैट। मैंने क्या किया था उस टाइम पर भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मैं एक इंडस्ट्री थी, अब मैं नाम भी यहाँ नहीं लूंगी, बट लाइक नानी घर जाते थे हम, वहां पर एक इंडस्ट्री थी। तो मैंने बात की, क्योंकि अब तो हम बच्चे ही थे, कॉलेज वाले तो भेजते नहीं थे, तो उनसे बोला मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने बोला अच्छा आओ 15 दिन ट्रेनिंग कर लो। वहां उनका सिरप बनाने की छोटी सी इंडस्ट्री थी, बट मैंने वहां बहुत कुछ सीखा, कैसे लेबर लोग काम करते हैं, कैसे क्या होता है। फिर मेरे को बड़ा मजा आया। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे जाके, जैसे वो मैंने कानपुर में की थी, तो मैंने नेक्स्ट ईयर बैंगलोर में, मेरे ब्रदर होते थे, तो ब्रदर को मैंने बोला मुझे यहाँ कहीं ट्रेनिंग करवाओ। तो वहाँ एक्स्ट्रा आइडियल में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए करा, वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। और मजेदार बात ये थी कि मैं सेकेंड ईयर के बाद ही गई थी, और वहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जो फाइनल ईयर के बाद भी आए थे, एक दो मणिपाल से भी थे और कहीं कहीं से थे। बट आई वुड लाइक टू से वेरी प्राउडली कि बहुत सारी चीजें मुझे उनसे ज्यादा आती थी। लाइक जैसे हम लोग टैबलेट सेक्शन में गए, हम लोग को इवैल्यूएशन अच्छे से आता था। वो उनको पूछते थे कि वेट वेरिएशन क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, तो वो ऐसे मुंह देखते थे। तो मुझे बड़ा हैरानी होती थी कि यार यार ये तो इतनी सिंपल सी चीज है, टैबलेट पढ़ा है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे नहीं आता है इनको। तो शायद वहां कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अरे हमको ये आता है। और यस। दूसरा ये कि आप ये सीखोगे कि इंडस्ट्री में कैसे हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर सम ट्रेनिंग्स। अगर आपको एनालिटिकल पसंद है तो गो फॉर सम इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग्स। और जैसे जो सीनियर बच्चे हैं, लाइक जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कुछ सॉफ्टवेयर वाली ट्रेनिंग करो, इंडस्ट्रीज में जाके इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग करो। आप देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक CDRI है, वो हाँ। लोग ट्रेनिंग कराते हैं। एम्स में भी आप बात करोगे तो ट्रेनिंग होती है। तो आप क्या करो,
इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये कोई वीडियो बनाओ जिसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं उसको बताओ, हम्म। तो वो लोगों को पता चलेगा कि हम कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को बिल्ड करें। सो एकेडमिक एंड स्किल डेवलपमेंट, या दूसरे ढंग से बोला जाए तो सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स हार्ड। बोथ आर इम्पोर्टेंट, यस। बोथ आर इम्पोर्टेंट। सो लर्नर्स, जैसे मैम ने इतने खूबसूरत तरीके से आप लोगों के सामने ये आंसर प्रेजेंट किया कि और सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स ये दोनों बैलेंस करना काफी जरूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो मैम, अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एवेन्यूज फॉर द फार्मासिस्ट जो अभी यूजुअली कोई फार्मेसी करते हैं, तो ऐसे कोई की टेक अवे एवेन्यूज हैं उनके लिए जो आप लिस्ट कर सकते हैं? Yes, as I told in previous as a in previous questions answer, कि आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है अकॉर्डिंगली आपको जॉब में जाना है। ओके, सो एवेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए? एकेडमिक्स है, फिर आपके पास इंडस्ट्री है, फिर आपके पास रिसर्च है, आपके पास मार्केटिंग है। ओके, फिर आपके पास गवर्नमेंट में जाने के लिए आपके पास बहुत सारी पोस्ट हैं। तो फिर मैं यही बोलूंगी कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करो, आपको किस काम को करने में अच्छा लगता है, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा है हमारी फील्ड जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इस जनरली क्या होता है कि हम कोई भी एक जॉब, अक्सर होता है कि हम इसको ले लेते हैं जॉब को, लेकिन वो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नहीं होता, तो हमको मजा नहीं आता है। तो आप इसमें ये आइडेंटिफाई करें कि आपको कहाँ किसमें मजा आता है, उस एरिया में आप जाएंगे। तो उस एवेन्यू को अगर आप पिक करेंगे तो मुझे लगता है दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यू विल एंजॉय डूइंग दैट। जब हम एंजॉय करते हैं तो हम अपना 100% देते हैं, और फिर उसमें से बहुत सारी नई चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि मैं रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ, पर गलती से प्रिंसिपल बना दिए। अब प्रिंसिपल बना दिए तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में 1 घंटा मैं सिर्फ रिसर्च के लिए दूं। तो उस 1 घंटे में मैं किसी को पास नहीं आने देती एडमिनिस्ट्रेशन का काम लेके। तो उससे क्या फायदा होता है कि सबको पता है कि इनको, हम इनके पास इस समय बैठ के प्रोजेक्ट रिलेटेड, ग्रांट्स रिलेटेड या बात कर सकते हैं। और होता क्या है पता है, जब हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं होता है कि हम सीनियर हो गए तो हमको बहुत आता है। जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, वो लोग स्टडी करते हैं, बहुत सारी नई चीजें वो लोग बताते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था, अपग्रेड योरसेल्फ, जैसे अभी क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन बूम, एआई। एआई, है ना। तो कई लोग बोलते हैं अरे एआई हमारी नौकरी ले जाएगा, और मैं कहती हूँ एआई नौकरी नहीं ले जाएगा, एआई सीखने वाला बंदा तुम्हारी नौकरी ले जाएगा। मतलब आपने एआई नहीं सीखा तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको फास्ट करेगा। बहुत सारे काम उसमें फास्ट होते हैं, यस। प्रिसाइज नहीं होते, फास्ट होते हैं। प्रिसाइज तो उसको आप ही करोगे, हम ही करें। क्योंकि आप उसको कितनी एफिशिएंटली यूज करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ना। राइट। So, ma'am, last question for today. What message would you give future aspirants? अगर आपको कोई 3 major points अगर future budding pharmacist या कोई pharmacy ले रहा है after 12th उनको बोलने हो, तो वो कौन से points होंगे? Suggestions, ओके, advices. श्योर। अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट पॉइंट इज नेवर लीव योर एथिक्स। Hmm. आप अपनी पढ़ाई अच्छा करो, एकेडमिक्स में जाओ, स्किल डेवलप करो, बट मॉरल इज, वी आर इंडियंस, वी शुड नेवर लीव आवर कल्चर, आवर एथिक्स, आवर मॉरल्स। फर्स्ट तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप सही रहिए, सही चलिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, एज आई टोल्ड, एकेडमिक्स के साथ अपने स्किल को डेवलप करें। थर्ड इज ऑलवेज कीप लर्निंग, अपग्रेड योरसेल्फ। जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म किया, पीएचडी किया,
फिर हमने एमबीए भी किया। अभी कभी-कभी मेरे को लगता है एलएलबी कर लेना चाहिए, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स में जब फँसते हैं ना तो वो बड़ा मेरे को फ़ैसिनेट करता है। कभी-कभी फ़ैसिनेट करता है क्यों ना हम बीएड कर लें, ये बीएड वालों के देखो टीचिंग लर्निंग टूल्स कितने अच्छे होते हैं। तो देयर इज़ नेवर एंडिंग, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो आई थिंक 3 हो गए? जी मैम। So, ओके। lastly, thank you so much. Vote of thanks to Dr. Chanchaldeep Kaur for devoting her precious time, because she's a principal and professor as well in her college, and she devoted time for us. Really, thank you so much, ma'am. And it was great learning with you. And I hope जो learners है उन्होंने भी मैम से बहुत सारी चीजें, मैंने तो सीखी ही है, उन्होंने भी सीखी होगी. And whatever are your doubts, please drop them in the comment section. We will try to answer them. And also मैम का YouTube चैनल है, so मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको प्लीज जाके, मैं खुद पर्सनली भी देखता हूँ, उस पर बहुत सारे वीडियोस है ऑन रिसर्च, ग्रांट्स, फेलोशिप, विमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे अलग अलग सेशंस है. सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एजुकेशन के भी है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह पे है, सो आप लोग मैम के चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके देखिएगा जरूर. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच।